سے رخصت ہو ہی رہی تھی نا، ان کو پتہ نہیں تھا. تو جب بھی سفر کرے بندہ، چاہے وہ ریل کا ہو، چاہے ہوائی جہاز کا ہو، چاہے بس کا ہو، جب بھی سفر کرے تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت، یعنی کہ شرعی سفر جب کرے، غالباً یہ مراد اس سے لی جائے، تو چلتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد. واپسی تک مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے، مال کی بھی حفاظت ہوگی، بال بچوں کی بھی حفاظت ہوگی. لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد و قل سے پڑھ کر باہر نکلیں. وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی، یعنی وہ 4 رکعتیں جو ہے بال بچوں کی اور آپ کے مال وغیرہ کی حفاظت کریں گی. گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک، تبت کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے، آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل راستے پر آرام رہے گا. نیز اس وقت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ بھی پڑھ لیں. یہ آیت قرآنی ہے، اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان: بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. تو یہ دعائیں وغیرہ پڑھ لی. رفیق الحرمین میں شروع کے صفحات پر یا سفر کے آداب وغیرہ کا بیان ہے، اس میں لکھی بھی ہے. پیج نمبر 39 پر یہ دعا موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رفیق الحرمین پیج نمبر 39. یہ جو ابھی امیر سنت نے جو دعا پڑھی وہ یہ ہے، اور اس کے نیچے یہ پوری اس کی تفصیل ہے، اور یہ یہاں تک ہے. اور اس کے بعد پھر یہی دعا ہے جو اب یہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو پڑھ کر سنائی گئی تھی. یہ بیک ٹائٹل کا بتا دیں زیادہ واضح. یہ اسی لیے یاد دہانی کے لیے حاجیوں کے لیے بیک ٹائٹل پر ڈالا گیا ہے کہ ان کو پڑھنا آسان ہو ہوائی جہاز میں بیٹھے تو. لیکن یہ صرف حج کے سفر کے لیے نہیں ہے. یہ دعا جب سفر کریں ہوائی جہاز میں تو اس میں یہ پڑھ لینی چاہیے، چاہے وہ کاروباری سفر ہو، کوئی سا بھی سفر ہو. میں ترغیب کے لیے عرض کروں، میں نے اپنے موبائل میں سفر کا فولڈر بنایا ہوا ہے. سفر، یہ سفر کا فولڈر ہے، اور سفر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اپنے اس فولڈر میں ڈال لیں. آپ اور بھی بہت ساری احتیاط آپ اس فولڈر میں ڈال لیں کہ جب آپ سفر پہ جائیں تو اس کو دیکھ لیں، اور جہاز میں بیٹھیں گے تو ڈھونڈنا بھی آسان ہو جائے گا. گھر سے نکلتے وقت یہ آیتیں، یہ رفیق الحرمین سے میں نے فوٹو کھینچ کر اپنے موبائل میں یہ بھی محفوظ کیا تھا کہ گھر سے نکلے تو یہ رکعتیں اور صورتیں جو پڑھنی ہم اس کو پڑھ سکیں. میرا فرسٹ مطلب جو ہوتا نا کہ یار ٹائم کون سا ہے، نماز آئی ہے کوئی بیچ میں. صحیح. ہم تو بس یہ اس چکر میں ہوتے کہ یار نماز نہیں آنی چاہیے بیچ میں. تو وضو اگر کرنا پڑا تو ہوائی جہاز میں وضو کرنا، جس کو وضو کے مسائل آتے ہوں، جو استاذ طبیعت کا مالک ہو نا، اس کے لیے وضو کرنا یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. عوام جن کو وضو آتا نہیں بیچارے بس فارمیلٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں، بات ان کی بات دوسری ہے. سب کو آنے چاہیے یہ مسائل کہ کس طرح دھونا ہوتا ہے اور کتنا دھونا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ہوائی جہاز میں نماز کی. پھر نماز پڑھنا اپنی جگہ پر اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ ٹائم، جیسے ہمارا لمبا سفر ہے نا، 10-12 گھنٹے کا مثلا سفر ہے، تب بھی ایسا ٹائم بعض اوقات مل جاتا ہے کہ بھئی وہ فجر پڑھ کے ایسے کوئی فلائٹ ہو تو وہ زور جہاں پہنچیں گے وہاں ٹائم رہے گا، باقی زور پڑھ لیں گے. یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیچ میں بھی اسٹے کرتا ہے ہوائی جہاز گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، تو وہاں کون سی نماز پڑھ لیں گے، تو چلو بیچ میں فلاں نماز پڑھنی ممکن ہو جائے گی. تو یہ ترکیب
या फिर नमाजें कम से कम आए, ऐसी फ्लैट ली जाए, 2-3 आए तो और आजमाइश एक ही आए अगर आनी है तो ये सबको देखना चाहिए। और नमाज तो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, तो फ़र्ज़ है, नमाज के बगैर तो बंदा किस काम का, नमाज तो नमाज है ना। अच्छे खासे नमाजी लोग भी जहाज़ में नमाज नहीं पढ़ते, ये हालत हो जाती है। अब ये कि जब भी सफ़र पर रवाना हो तो ये इन एहतियातों के साथ हम रवाना हों और अपने रिश्तेदारों जान पहचान वालों से माफ़ी तलाफ़ी करके जाएं। पता नहीं कि ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है या क्या है। अल्लाह खैर फरमाए। बस ये मेरा मशवरा पेश नज़र रखिएगा कि हवाई जहाज़ को, कंपनियों को, मुल्कों को कोसने के बजाय ऐसे मौके पर अपने लिए इबरत का सामान करे बंदा और अल्लाह से पनाह मांगे, हो जाता है। मतलब हमारे ये बोल बोल करने से या कोसने से कंपनियों को कोई मतलब, ये जो चले गए वापस तो आएंगे नहीं, वो तो जाना तो चले गए। अब ये जाने, इनके कानून जाने, अरे इनको कानून थोड़ी छोड़ेगा, इसके तो पूरे केस कबाड़े जो भी होते हैं वो चलते रहते हैं। हमारे बड़बड़ करने से कुछ भी नहीं होता, या तो फजूल बात होती है, या गिबतें होती हैं, या तोहमतें होती हैं। हम लोग जो बात करते हैं इससे कौन सा मतलब कानून हरकत में आ जाएगा और ये हो जाएगा तो फांसी किसको देंगे, हवाई जहाज को देंगे, ये गिरा क्यों? तो ये काम हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का होता है, ये करते रहते हैं। हमें अपनी करनी चाहिए, अपनी मौत को याद करनी चाहिए, करना चाहिए कि जो भी इसमें मुसलमान था, पायलट को भी अल्लाह बख्शे, क्रू को भी बख्शे, जो भी मुसलमान थे अल्लाह इन सभी को बख्शे। हमारी यार किससे दुश्मनी कि इसकी गलती, उसकी गलती, हम कौन से मतलब सही हैं? हमारी कदम कदम पर गलतियाँ होती हैं। अल्लाह सबको बस मुआफ़ी से नवाज दे। ये तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, मुआफ़ियाँ मिलने का अशरा है, जहन्नम से आज़ादी मिलने का अशरा है। तो अल्लाह की बारगाह में सबको सिद्के दिल से झुक जाना चाहिए और उसी से मतलब है कि पनाह मांगे कि बस हमको ऐसे हादसों से, हमको भी, हमारे मुल्क को भी और आका की दुखियारी उम्मत को महफूज रखे। हमको ऐसी आजमाइश में ना डाले कि जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। हम पर रहमत की नज़र फरमाए। मदीने में आफियत के साथ ज़ेरे गुम्बद खजरा जलवे महबूब में शहादत नसीब फरमाए। आमीन। अब ये जो जमा भी होते हैं, ये भी सिर्फ तमाशा बनाते हैं, तो ज़ाहिर है कि इसका भी वो नहीं है। इबरत देखना भी है तो इबरत की आँख से बंदा देखे। मगर इस चैनल पर भी देख रहे हैं तो बस हम लोग सनसनी से देख रहे होते हैं। इबरत कि ये कार जल रही है, अब जिसकी कार होगी उसके साथ में दिल भी तो जल रहा होगा ना, हम तो तमाशा ही देख रहे हैं। उससे हमदर्दी है कि बेचारे की कार जल गई। क्या पता गरीब ने कर्जे लेकर कार ली हो और अब ये बेचारा रो रहा हो घर में बैठा हुआ। हम ये तजस्सुस से देख रहे हैं, उसकी तबीयत तो पूछने से रहे, उसकी गमख्वारी तो करने से रहे कि भाई सब्र करना, हिम्मत रखना। और आज बेचारा रोज़ा रखा होगा तो इफ्तार का होश नहीं होगा, चलो भाई थोड़ी इफ्तारी इसको पहुंचा दी कि आज गमज़दा, इनके घर वाले गमज़दा होंगे, बेचारों का कार जल गई, बेचारों की छत गिर गई। तो इनसे हमको हमदर्दियाँ करनी है, सिर्फ इबरत हासिल करनी है, सनसनी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयदी, अचानक मौत से पनाह मांगनी चाहिए, उसकी क्या दुआ है? अल्लाह अल्लाह, सोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ लें तो रात में अचानक मौत से महफूज रहेगा। और बावुज़ू रहे, बावुज़ू अगर हर वक्त रहने वाला बंदा जो है ना, वो अचानक आने वाली मुसीबत से महफूज हो जाता है। जो बावुज़ू नहीं है और कोई मुसीबत पहुंच जाए तो वो अपने आप को मलामत करे कि मेरा वज़ू क्यों नहीं था। मेरे सुन्नत से और मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर किसी के वालिदैन ईद से 6 माह या 1 साल पहले फ़ौत हुए हैं और वो ये कहे कि हम ईद इसलिए नहीं मना रहे कि क्योंकि हमारे वालिदैन के फ़ौत हुए हैं, तो ईदी लेना देना ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं? अरे जिसके यहाँ इंतकाल हो जाए उसको ईदी के पूछ रहे। जी जी, जिस घर में इंतकाल हुआ और 6 महीने पहले हुआ, एक बार फिर कॉल चला रहा है। हाँ ये अच्छा, पहली ईद के पहली ईद, हाँ ये हमारे यहाँ सोग मनाते हैं बाज़ लोग, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। सोग 3 दिन का होता है और बीवी के लिए अपने शौहर की वफ़ात का
4 महीने 10 दिन शोक होता है, बाकियों के लिए सिर्फ 3 दिन। 3 दिन से ज्यादा शोक और गम इरादतन नहीं मना सकते। वो अलग बात है, किसी का जवान बेटा चला गया तो माँ बाप को जिंदगी भर बेकरारी रहे तो उसमें अपना इख्तियार नहीं है, लेकिन ये कि ईदी देने लेने में कोई मसला नहीं है, वो मुश्किल नहीं है। ईद मनाएंगे, ईद की नमाज भी पढ़ेंगे, ईद के लिए उम्दा कपड़े भी पहने। 6 महीने गुजर गए यार, बिल्कुल आप ईद मनाएं, मुबारकबाद दे। मुबारकबाद देना क्या है? बरकत की दुआ है, मुबारकबाद। अल्लाह इस ईद को आपके लिए बाइस से बरकत बनाए, बरकत वाली बनाए, दुआ तो है, मुबारकबाद। तो ये कि बिल्कुल करना चाहिए, ईदी दें, ज़्यादा दें, बल्कि शैतान रोक रहा कि मत दें तो आप ज़्यादा दें, कि जाओ तो इससे हो सके वो कर ले, ज़्यादा दूंगा। शैतान का मुकाबला करना, न कि इसके आगे सर झुकाना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बकरीद में कुर्बानियाँ नहीं करते जी, पहली ईद है। हाँ, अच्छा, बात समझदार भी होते ना तो लोगों के तानों से बचने के लिए भी हिस्सा डलवा देते हैं, अपने घर में खुशी का माहौल नहीं बनाते। खैर ये भी गलती है, खुशी का माहौल बनाना चाहिए, ताकि मतलब ये कि वो जो शैतान की बातों में आ गए इनका मुंह बंद हो। थोड़ा मुंह खुलेगा, ये कब तक खुला रहेगा? कि ईद को खुशी का इजहार करना ये मुस्तहब है, सुन्नत है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ईद का इजहार और खुशी का इजहार ये सब हदीसें मौजूद हैं इसमें, कुरान की आयत भी इसमें, कि ऐसे खुशी के मौके पर फरहत का इजहार, वो अगर मुफ्ती साहब कोई वो आयत पढ़ दें तो। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। आप फरमाइए कि अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत यही इसके ज़्यादा लायक हैं कि इस पर तुम खुशी मनाओ। तो ईद का दिन अल्लाह के फजल का दिन है, उसकी रहमत के नुज़ूल का दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है, तो इस पे खुशी का इज़हार सुन्नत है। ईद उल फित्र में भी सुन्नत है, ईद उल अज़हा बकरीद में भी सुन्नत है। तो इसमें अगर मैयत को 3 दिन से ज़्यादा हो गया तो अब सोग तो है ही नहीं ना। अच्छा, जो 3 दिन के अंदर है, जैसे कि अगले दिन ही वफात हुई है किसी के घर में, तो 3 दिन सोग के, तो अब इसमें ये ईद मनाने का कोई इसमें अब मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे? ईद की नमाज तो वाजिब है, सोग मनाएंगे जी, ईद की नमाज वाजिब रहेगी, बाकी सोग के दिन है तो सोग मनाएंगे। ये सोग मनाना कोई फर्ज वाजिब है क्या? अब वो क्या है सोग? एक सोग एक फितरी अम्र है कि आदमी को जितना प्यारा हो उतना गम होगा। ईद की नमाज या मर्द के लिए जो ईद की नमाज के लिए जा रहा है, तो वैसे भी अच्छे कपड़े पहनना, तो वैसे हर नमाज के लिए कि ऐसे कपड़े होना मुस्तहब है कि जैसे कपड़े पहनकर जैसे कोई वज़ीर आज़म के पास जाए, वज़ीर आज़म का बुलावा है, तो क्या नहीं पहनेगा ये? ने बड़े से बड़ा दुनिया का बंदा जो है उससे मिलने के लिए जाए तो कितना उम्दा लिबास पहनेगा, तो कैसा टिप टॉप करेगा। लेकिन वो सब सुन्नत के और शरीयत के दायरे में, तो हर नमाज के लिए कि अल्लाह की जनाब में हाज़िरी है, किसी वज़ीर की जनाब में हाज़िरी नहीं है, तो अल्लाह की जनाब में हाज़िरी, तो उम्दा लिबास तो वैसे ही मुस्तहब है। और ईद के लिए नया कपड़ा सुन्नत है, नया लिबास मुस्तहब है। माफ़ कीजिए, नया या घर में जो सबसे उम्दा हो और धुला हो, साफ सुथरा हो, तो वो मुस्तहब है। तो इसमें जिस पर 3 दिन का सोग है, औरत को तो अलग अलग उसकी इद्दत के तो मसाइल हैं। मर्दों के लिए मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई पढ़ना याद नहीं पड़ता कि वो सोग मनाने का क्या, कोई ये भी कोई अच्छे कपड़े पहनना मना है, अच्छे खाने मना है, इनको कोई ऐसा पढ़ा नहीं है। और ईद के दिन के मुस्तहब्बात उसको अमल में लाए, ये समझ में आता है, लेकिन अपनी अटकल से ज़ाहिर मसला नहीं बताना चाहिए। मैं ऐसे ही याद आ गया, मैंने कहा कभी कभी जहन में आता है मेरे ये, तो आज वो याद आ गया, तो मैंने अगर कोई हो सकता ही मालूमात इसमें।
چلو جب تک یاد آ جائے ہم کوئی اطلاع آ جائے تب تک یہ آگے بڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعدہ صاحبہ کی عمر تقریباً 100 سال ہے. انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اس مہینے میں کتنا دیا دینا ہے ان کے رمضان پورے مہینے کا. اگر 100 سال کی عمر ہے اور ایسا بڑھاپا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں, غالباً والدہ کا بتایا تو آپ کی اپنی جان بیچاری پر اللہ رحم کرے, اگر یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی, ایسی کمزور ہو گئی ہیں, تو پھر یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ہے, صدقہ فطر. مثلا پاکستان میں آج کی تاریخ میں